Hi, good morning, all. This is John DeCosta. The last in grammar session, as I taught, according to tense, present continuous, and in my last video, I had cleared that where we use present continuous in a spoken English. See, actually, I'm teaching grammar, that how to use grammar in communication, and I'm teaching tense along with voice. So here, my next video that I'm making and I'm now teaching, that is passive of present continuous. Passive of present continuous. Passive of present continuous. Continuous, that means what? That what I made you understand in my last video of grammar, present continuous tense. Continuous means what? That going on. What's going on? Right now I'm teaching. You are studying. It's continuity, consistently happening. John sir is teaching, we are reading. In tense, there's a great importance of a subject. But as far as passive voice is concerned, there's a great importance of an object. Why? Because as I had discussed that passive is what? Like that. It's cross. Now, know the structure of passive of present continuous. As an affirmative. Affirmative structure. Affirmative means positive structure. Active. Active, passive. Active structure is subject plus is MR plus V4 plus object. This is a complete present continuous structure. Present continuous structure. This one, subject plus is MR, subject plus is MR plus V4. It's completely passive structure. Subject plus is MR plus V4 plus object. Active structure according to tense. And now according to voice. According to voice, object यहाँ आ जाएगा. And we use is MR. Clear? और मैंने आपको रूल्स बताया था कि अगर V1 V5 से शुरू हो तो हम लोग B लगा करके वॉइस बनाते हैं. यहाँ पे is MR लगा करके हम लोग वॉइस बनाते हैं. और अगर यहाँ is MR से शुरू हो तो यहाँ is MR के बाद हम लोग being लगाते हैं. Object plus is MR plus being plus V3. Is MR being plus V3 plus other words. Is MR being plus V3 plus other words. See an example. Active and passive. One Hindi and one should be English. One Hindi and one should be a English. See an example. What I have written? I have written, I am writing a letter. I am writing a letter. I am writing a letter means .
What it means? मैं पत्र लिख रहा हूं. मैं as a subject, पत्र as object, लिख रहा हूं. It's continuous form, writing. I am writing a letter. And if you want to convert this sentence into passive voice, in a very easy way, you can. What the rules? You see this one. Clear? What? Object. And what is object here? A letter. A letter is, according to object that we use is MR. So a letter is. And after is what I have to use? Being. A letter is being written by, a letter is being written by, what is subject here? I. And according to the rules, I can change into me. A letter, for example, I want to tell you, she is playing cricket. She is playing cricket. What should be the passive? She is playing cricket. Cricket is being played by her. We are watching movie. We are watching movie. Movie is being watched by us. Movie is being watched by us. And now, I just want to make you understand according to this sentence, means according to Hindi, and what should be the Hindi of according to passive voice. See a sentence here. मैं पत्र लिख रहा हूं. तो मैं यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट. मैं क्या यहाँ पे? सब्जेक्ट. पत्र क्या है? ऑब्जेक्ट. तो एक्टिव में इंपॉर्टेंस किसका होता है? सब्जेक्ट का. और पैसिव में किसका इंपॉर्टेंस है? ऑब्जेक्ट का. यानी यहां सेंटेंस हो जाएगा, पत्र में लिख रहा हूं. पत्र में लिख रहा हूं. इट्स एन ऑब्जेक्ट. यही होगा पैसिव में. सिंपल. पत्र में लिख रहा हूं. अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी. क्रिकेट वह खेल रही है. क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय हर. सिनेमा वह देख रही है. मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय हर. चेस हम लोग खेल रहे हैं. चेस इज बीइंग प्लेड बाय अस. This is active voice according to affirmative. According to affirmative. This is a passive voice. Clear? Clear? I don't think that you all have a questions about that. Clear? Now, just suppose if you want to change this sentence into negative, it's very easy that you can. Negative. In negative is what? The sentence is negative. And that one thing we have to do. What? Subject plus is MR plus not. Subject plus is MR plus not. And same here. Object plus is MR plus not. Is MR plus not. Is MR plus not. It means after an auxiliary verb, we are using not if you want to make the sentence positive to negative. Either it's active or passive. You have to use is MR not in active, is MR not in passive. And there is no change. Apart from not, that we are not going to change any a single word. The same sentence can convert in negative. But negative is what? The sentence should be a negative. मैं पत्र नहीं लिख रहा हूं. मैं पत्र नहीं लिख रहा हूं. क्या हो जाएगा? I am not writing a letter. I am not writing a letter. Passive, active example. I am not writing a letter. And now change this sentence in passive. Then what? A letter is being written by me. It's a passive in positive. And now negative क्या हो जाएगा? A letter is not. A letter is not being written by me.
पत्र में लिख रहा हूं। यहां क्या हो गया? आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र नहीं लिख रहा हूं, पत्र मैं नहीं लिख रहा हूं। अ लेटर इज नॉट बीइंग रिटन बाय मी, इट्स नेगेटिव स्टेटमेंट। Earlier it was a positive statement, but now it's a negative statement. और नेगेटिव में चेंज क्या किया? There should not be a single word change. जैसे सेंटेंस है सब वही रहेगा, बस वहां पर एक ही चेंज होगा कि हम लोग एक्सुलरी के बाद, इसके बाद एक्सुलरी के बाद हम लोग नॉट का यूज कर देते हैं। See, there is a great use of passive voice. Great use of passive voice. Passive voice का बहुत ग्रेट यूज है। किस सेंस में? ग्रामर में नहीं, स्पोकन इंग्लिश में। इसका मुझे यूज करना होगा, ये बहुत ज्यादा यूज होता है कम्युनिकेशन। चलिए, ये तो निगेटिव हो गया, इट्स अ निगेटिव। अब इसको चेंज करेंगे हम। इसमें चेंज करेंगे। नाउ आई एम गोइंग चेंज इन इंट्रोगेटिव। दैट मीन्स पॉजिटिव क्वेश्चन। पॉजिटिव क्वेश्चन क्या है? ये पॉजिटिव क्वेश्चन है। क्या है? पॉजिटिव क्वेश्चन। इसके पहले क्या था? निगेटिव। उसके पहले क्या था? इंट्रोगेटिव। इसके पहले क्या था? पॉजिटिव। इसके पहले क्या था? निगेटिव। अब क्या है? इंट्रोगेटिव, यानी पॉजिटिव क्वेश्चन। पॉजिटिव क्वेश्चन इन फॉर व्हाट? पॉजिटिव क्वेश्चन फॉर पैसिव वॉइस। पॉजिटिव क्वेश्चन फॉर पैसिव वॉइस। CNS स्ट्रक्चर is MR plus subject plus V4 plus object. Is MR plus subject plus V4 plus object. यहां पैसिव क्या हो गया? अगर इज एमआर से क्वेश्चन शुरू है एक्टिव में, तो इज एमआर से क्वेश्चन पैसिव में भी शुरू होगा। अंतर क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट यहां आ जाएगा। क्लियर? एंड आफ्टर दैट वी यूज बीइंग एंड V3। V4 है किसमें? कंटिन्यूअस में, लेकिन वर्ब यहां हो जाएगा V3 प्लस अदर वर्ड्स, एंड सी एन एग्जाम्पल। जैसे मैंने क्या लिखवाया था सिंपल फॉर्म पैसिव में, सॉरी अफर्मेटिव में, मैं पत्र लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग अ लेटर। अब नाउ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या हो जाएगा? एम आई राइटिंग अ लेटर? एम आई राइटिंग अ लेटर? क्या मैं एम आई राइटिंग अ लेटर, क्या मैं पत्र लिख रहा हूं? क्या मैं पत्र लिख रहा हूं? एम आई राइटिंग अ लेटर? क्या मैं सो रहा हूं? एम आई स्लीपिंग? क्या मैं नाच रहा हूं? एम आई डांसिंग? इट्स ऑल अबाउट पॉजिटिव क्वेश्चन। पॉजिटिव क्वेश्चन इन एक्टिव। एंड नाउ आई जस्ट वांट टू चेंज दिस सेंटेंस इन पैसिव। तो पैसिव में क्या हो जाएगा? सेम चीज, कोई चेंजिंग नहीं होगी। यहां एम है और यहां लेटर है, तो यहां एम के अनुसार नहीं, यहां चेंजिंग होगा, यहां चेंजिंग होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो अ लेटर, तो उसके लिए क्या यूज होगा? हम लोग क्या यूज करेंगे एक्चुअली में? इज अ लेटर, इज अ लेटर बीइंग written by me? Is a letter being written by me? ये क्वेश्चन है, तो यहां पर मुझे क्वेश्चन मार्क देना होगा। क्लियर? यहां भी मुझे क्वेश्चन मार्क देना होगा। ये एक्टिव में क्वेश्चन है जहां डायरेक्ट सब्जेक्ट बात कर रहा है,
ये पैसिव में है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कर रहा है। इसका हिंदी क्या होगा? क्या पत्र क्या पत्र मैं लिख रहा हूं। इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय मी। क्या हो गया? इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय मी। क्या पत्र मैं लिख रहा हूं। क्लियर? यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? सब्जेक्ट। यहाँ क्या इंपॉर्टेंट है? ऑब्जेक्ट। इज अ लेटर, एम आई राइटिंग अ लेटर। एम आई राइटिंग अ लेटर, सब्जेक्ट। इज अ लेटर, इट्स एन ऑब्जेक्ट। यह हो गया पॉजिटिव क्वेश्चन इन इंट्रोगेटिव। क्या हो गया? पॉजिटिव क्वेश्चन इन इंट्रोगेटिव। लेट मी टेल यू वन एग्जांपल अगेन हियर। क्या आप मुझे आमंत्रित कर रहे हैं? क्या आप मुझे आमंत्रित कर रहे हैं? आर यू इनवाइटिंग मी? आर यू इनवाइटिंग मी? पैसिव। एम आई बीइंग इनवाइटेड बाय यू? एम आई बीइंग इनवाइटेड बाय यू? क्या वे लोग चिकन खा रहे हैं? आर दे ईटिंग चिकन? आर दे ईटिंग चिकन? पैसिव। क्या चिकन वे लोग खा रहे हैं? इसके पहले क्या सेंटेंस था? क्या वे लोग चिकन खा रहे हैं? आर दे ईटिंग चिकन? पैसिव। क्या चिकन वे लोग खा रहे हैं? क्या चिकन वे लोग खा रहे हैं? इज चिकन is chicken being eaten by them? Is chicken being eaten by them? It's a passive form. क्लियर? ये हो गया पॉजिटिव क्वेश्चन। क्या हो गया? पॉजिटिव क्वेश्चन। क्या हो गया? पॉजिटिव क्वेश्चन। इज शी ड्राइविंग अ कार? इज शी ड्राइविंग अ कार? क्या वह कार ड्राइव कर रही है? क्या वह कार ड्राइव कर रही है? इज शी ड्राइविंग अ कार? इसको बनाते हैं पैसिव में। क्या कार वह ड्राइव कर रही है? क्या कार वह ड्राइव कर रही है? इज अ कार बीइंग ड्राइवन? इज अ कार बीइंग ड्राइवन बाय हर? इज अ कार बीइंग ड्राइवन बाय हर? दिस इज अ पैसिव क्वेश्चन इन इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट। क्लियर? अब इसको बनाना है मुझे निगेटिव। क्या बनाना है? इंट्रोनिगेटिव। इंट्रोनिगेटिव मींस निगेटिव क्वेश्चन। निगेटिव क्वेश्चन इन पैसिव फॉर्म। निगेटिव क्वेश्चन इन पैसिव फॉर्म। निगेटिव क्वेश्चन इन पैसिव फॉर्म। अब वेरी सिंपल रूल, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी, कोई दिमाग लगाने का जरूरत नहीं। जैसे मैंने अफर्मेटिव में क्या बताया था? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, नॉट लगाया था आपने, नेगेटिव बन गया था। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, नॉट। सेम उसी तरह से यहां नॉट लग जाएगा। इज एम आर प्लस नॉट, इज एम आर प्लस नॉट, एंड देयर इज नो चेंज। सब कुछ वही है, नॉट लगाना है ना। सिर्फ सेंटेंस को निगेटिव बनाना है तो नॉट लगा के निगेटिव बनाएंगे, फिर और कुछ क्यों चेंज हो? There should not be any single arrangement is changed. कोई भी सिंगल चेंज नहीं होगी। चेंजिंग सिर्फ ये होगा कि नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग नॉट लगा देते हैं और कोई चेंजिंग नहीं। जैसे यहाँ सेंटेंस देखिए, क्या मैं पत्र नहीं लिख रहा हूं? क्या मैं पत्र नहीं लिख रहा हूं? एम आई नॉट, ये भी बोल सकते हैं, एम आई नॉट राइटिंग अ लेटर, या आंट आई राइटिंग अ लेटर। एम आई नॉट की जगह आप बोल सकते हैं आंट आई। आंट आई राइटिंग अ लेटर? क्या वे लोग नहीं गाना गा रहे हैं? आंट दे नॉट, आंट दे सिंगिंग अ सॉन्ग? क्या वह भीख नहीं मांग रही है? इजंट सी बेगिंग या इज सी नॉट बेगिंग? दोनों सही है। सब्जेक्ट के बाद भी नॉट लगाएगा, इनकरेक्ट नहीं होगा। या सब्जेक्ट के पहले भी एग्री वर्ब के साथ आप नॉट लगा सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब इसको देखिए, बनाते हैं पैसिव फॉर्म में।
तो पैसिव फॉर्म में क्या मैं पत्र नहीं लिख रहा हूं? एम आई राइटिंग अ लेटर? इट्स एक्टिव. अब क्या पत्र मैं नहीं लिख रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? isn't a letter being written by me? Isn't a letter being written by me? क्या पत्र मैं नहीं लिख रहा? क्लियर? ये था हमारा इंट्रो निगेटिव इन निगेटिव फॉर्म. इंट्रो निगेटिव इन निगेटिव फॉर्म. इसके पहले क्या था? इंट्रोगेटिव इन पॉजिटिव फॉर्म. पॉजिटिव क्वेश्चन, निगेटिव क्वेश्चन. निगेटिव क्वेश्चन में नॉट आ जाएगा, पॉजिटिव क्वेश्चन में नॉट नहीं आएगा. And last but not the least, that is WH. And now the next one is WH. WH के बारे में हमने डिस्कस किया था. क्या होता है WH? A question which is started by W and H. A question which is started by W and H is called WH question. So WH means WH. WH plus is MR plus subject plus V4 plus object. WH plus is MR plus subject plus V4 plus object. अब इसको पैसिव में बदलना है, तो पैसिव में बदलने के लिए ऑब्जेक्ट यहां आ जाएगा, तो WH जहां है वहीं रहेगा. क्लियर? is MR जहां है वहीं रहेगा, बिकॉज इट्स एन एक्चुअली वर्ब. अब सब्जेक्ट यहां है तो यहां ऑब्जेक्ट हो जाएगा. इसके बाद होगा बीइंग. वर्ब का V3 होगा यहाँ पे. वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं. यहाँ V4 है तो यहाँ V3. पैसिव में तो नियम ही वही है. एंड अदर वर्ड्स. एंड अदर वर्ड्स. क्लियर? जैसे आपका क्वेश्चन क्या था स्टार्टिंग में? आई एम राइटिंग अ लेटर. आई एम राइटिंग अ लेटर. अब यहां प्रश्न है, क्या क्वेश्चन है? हु इज राइटिंग अ लेटर? कौन लिख रहा है पत्र? हु इज राइटिंग अ लेटर? कौन लिख रहा है पत्र? व्हाई आर यू बीटिंग हिम? आप उसे क्यों मार रहे हो? यहां क्वेश्चन क्या हो गया? कौन पत्र लिख रहा है? कौन पत्र लिख रहा है? हु इज राइटिंग अ लेटर. क्या हो गया? हु इज राइटिंग अ लेटर. कौन पत्र लिख रहा है? अब पैसिव. तो पैसिव में मैंने बताया था आपको कि व्हाट है तो व्हाट ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं. विच है तो विच ही रहेगा. वेयर है तो वेयर ही रहेगा. लेकिन अगर हु है, हु, ओनली हु, तो यहां हो जाएगा बाय हुम. तो हु की जगह क्या हो गया यहाँ पे? बाय हुम. ओनली इन पैसिव फॉर्म. बाय हुम. अगर व्हाट रहता तो व्हाट ही होता. विच रहता तो विच ही रहता. और वेयर रहता तो वेयर ही रहता. सब कुछ वही रहता. देयर इज नो चेंज. लेकिन हु है तो यहाँ पे सिर्फ देयर इज अ स्मॉल चेंज. क्या स्मॉल चेंज हुआ? हु की जगह बाय हुम. बाय हुम. बाय हुम. अब क्या आ जाएगा? बाय हुम इज अ लेटर. बाय हुम इज, क्वेश्चन है ना, तो एयू में पढ़े आएगा. बाय हुम इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय. रिटन बाय कुछ नहीं. कुछ नहीं. क्यों? क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट हु ही है. दैट्स व्हाई यहां बाय नहीं. इसमें सब्जेक्ट कहां है? अगर सब्जेक्ट रहता तो फिर हु से क्वेश्चन ही नहीं पूछते. हु से क्वेश्चन कब पूछते हैं? जब मुझे सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं. सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं, तब ना हम क्वेश्चन करेंगे. आप क्वेश्चन किए, सर हु आर यू? If you know that I am a John, why should you ask me a question, sir, who are you?
No, if I know the name of anyone who is standing behind you, then why you are going to ask such a question that who are you, who is that, who is she, and who is someone? No, you can ask this question to a stranger. The same here. By whom is a letter being written? कौन पत्र लिख रहा है? यहां हो जाएगा पत्र कौन लिख रहा है? पत्र कौन लिख रहा है? Yes, I am writing. आपसे कोई क्वेश्चन किया, who is writing a letter? Yes sir, yes, I am writing a letter. I, it means you are a subject. By whom is a letter being written? Yes sir, a letter is being written by me. It means you answer it with the help of subject, because यहाँ पे subject who है. क्लियर? चलिए एक एग्जांपल और मैं बताता हूं आपको. यहाँ पे तो सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन अब मैं देखता हूं. Why are you beating him? Why are you beating him? Means आप उसे क्यों पीट रहे हैं? आप उसे क्यों पीट रहे हैं? Why are you beating him? ये क्वेश्चन हो गया. अब देखिए यहाँ पे तो सब्जेक्ट है, इसमें सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट आएगा, इसमें सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है. तो why में कोई चेंजिंग नहीं. जहां WH है वही होगा, जहां एडजेक्टिव है वही होगा. But according to this one, why is he being beaten? Why is he being beaten by you? It's a question. Why is he being beaten by you? तो ये था कंप्लीट हमारा पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस. Passive voice of present continuous. So I would like to request to all that if you have got any sort of question, please comment on my YouTube's, and directly you can message me on my WhatsApp. Already I have mentioned in my last video that my WhatsApp number is 9905393251. And please आप मेरे YouTube को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल बटन को टच करें, ताकि जब भी कोई मैं वीडियो डालूं आपको मैसेज मिल जाएगा. And please I would like to thanks to all that who have subscribed my video. आपसे एक humble request ये भी है कि आप हमारा वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें, और अच्छा लगे तो श्योर कमेंट करें, अच्छा नहीं भी लगे तो आप मुझे मैसेज करें, ताकि मैं अपने वीडियो में और इम्प्रूव कर सकूं. एंड थैंक यू ऑल, थैंक्स ऑल. और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब शेयर करें और इसका यूज करें. एंड इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन यू कैन आस्क. आशीष